Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. Now see. So we'll do today the identities related to sign, उससे रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज हैं और 10 से भी रिलेटेड वो आइडेंटिटीज मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए, इफ यू डू रिमेंबर, हमने पहला आइडेंटिटी जिसमें साइन ए प्लस बी का बताया था, है ना, दैट इज इक्वल टू साइन ए cos b plus cos a sin b. Is that okay? And the second identity was sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b. And the third identity was sin 2a is equal to 2 sin a cos a. इसको हमने हाफ एंगल का भी आपको बताया था कि भाई आप हाफ एंगल में क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशंस तो आपको सारी अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी. If you see that on the left hand side angle is twice, but on the right hand side it become half of that. So in half angle formula it behaves like this: 2 sin a by 2 and cos a by 2. Is that okay बेटा? क्लियर है? अब इसके Yes, sir. अब इससे आगे की बात करेंगे. देखिए, the same way the fourth identity is adding 1 and 2. Adding 1 and 2. So what you are going to obtain? Sin a plus b plus sin a minus b. See, if you add them, then you are going to obtain 2 sin a cos b. Got it? Now, for identity number 5, what you will do is subtracting 2 from 1. 2 from 1. If you do this part, then you will be obtaining, your fifth identity is sin a plus b minus sin a minus b is 2 cos a sin b. These are your 5 identities. Now, how you will obtain 6 and 7? We assume let a plus b is angle C and a minus b as angle D. If I add them, I will be having 2a is equal to C plus D and a is equal to C plus D by 2. And by solving it, you will get b as C minus D by 2. Now see what is going to happen here. If in the above identities, see, if I replace this whole angle by C and this whole angle by D, and in place of A, I will write C plus D by 2. And in place of B, I will write C minus D by 2. So you will be obtaining another identity or not? Please tell me. Again, Yes, sir. here I will replace it by C and this will by D. And this angle A will be replaced by C plus D by 2. And this angle is C minus D by 2. So what I will do here now, so making these changes, making about changes in 4 and 5. So we will be obtaining identity number 6 as sin C plus sin D is 2 sin C plus D by 2 and cos C minus D by 2. And your seventh identity is sin C minus sin D is 2 cos C plus D by 2 and sin C minus D by 2. Is that okay बेटा? क्या ये सारी आइडेंटिटी आपको समझ में आई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. बेटे पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला लीजिएगा, क्योंकि एक फ्रेम में सारा नहीं आएगा. डन बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, now see the next one. Done? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now I will be doing identities related to tan theta, and then I will also explain you today that what is the learning technique of these identities. Now, identities related to tan. See, the first identity is tan A plus B. So can we write this tan A plus B as sin A plus B upon cos A plus B? Is that okay? Any problem? No, sir. So No, now, sir. now we will use the formula because we have already done sin A plus B and cos A plus B. So beta, it will be sin A cos B plus cos A sin B upon cos A cos B minus sin A sin B. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. So now, but my intention is to get this result in terms of tan theta. Are you getting it? Now, so therefore, without loss of generality, so what I will do here, dividing numerator and denominator by cos of A, cos of B. Dividing numerator and denominator by cosine of A into cosine of B. See what is going to happen. If you divide this first term, cos B will get cancelled. तो it will be sin A upon cos A. Tan A आ जाएगा बेटा. Please tell me. Clear है वाली बात? Yes, sir. If I divide this term by cos A cos B, because I am dividing term by term बेटा, क्योंकि LCM तो same ही आएगा ना. तो cosine of A will get cancelled. So I will be having tan B. Navika, are you getting it beta? Please tell. Yes, sir. Yes, sir. Yes. If I divide cos A cos B, then it will be entirely 1, and here it will be tan A tan B. So that is the formula. I hope आपको समझ में आ गया होगा बेटा. हाँ जी, sir. Okay. Now the next formula is tan A minus B. Can I write tan A minus B as tan A plus of minus B? Is that okay beta? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. So I will use the above identity, and wherever angle B is appearing, I will replace it by minus B. Tan A plus tan of minus B upon 1 minus tan of A dot tan of minus B. Is that okay beta? Now tan of हाँ जी, sir. minus theta is minus tan theta. Is that okay? So can I write this as further tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. Is that okay beta? Yes, sir. So that's the identity for tan A minus B. देखिए बेटा, अगर मैं इन आइडेंटिटीज को बिल्कुल ऐसे ही सीधा डायरेक्ट लिखता ना, इनका एक इंप्रेशन नहीं बन पाता. समझ में आ रही बात? आप एक बात बताइएगा, अगर आप बगैर काम किए आपको पैसा मिल जाए तो हम उस पैसे की वैल्यू नहीं करते हैं ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो हाँ जी, sir. अगर हम किसी फॉर्मूले पे मेहनत करते हैं और उसको मेहनत करके उसको डेवलप करते हैं तो उस फॉर्मूले की फिर वैल्यू बन जाती है. समझ में आती है बात? तो इसलिए डेरिवेशंस मस्ट है चीज़ों को समझने के लिए. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ these two formulas. Done? Yes, Yes. sir. Now the third identity is tan 2a. Now see what I will do here.
मैं यहीं से tan 2a निकालूंगा बेटा। tan 2a का मतलब क्या है? tan a प्लस ए ही तो है बेटा ना। व्हाट इज tan a प्लस ए? बेटा जहां एंगल b है tan a प्लस बी में, उसको a से तो रिप्लेस करना है। आप ही बताइए, यही होने वाला है। Yes, sir. तो बताइए कौन सी बड़ी बात है इसमें? देखिए इस टेक्निक को अगर दिमाग में रखते तो यू कैन नॉट फॉरगेट द फॉर्मूलाज। तो अब बताइए आपके सामने मैंने कितने फॉर्मूले लिखवाए हैं टोटल, बता सकते हो? 7 प्लस 7, 7 उसके थे, 7 प्लस 7 प्लस ये कितने आ गए भाई? 3। तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 17 हो गए। So 17. अब इन 17 फॉर्मूले से पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी जा सकती है। अब मैं 17 फॉर्मूलेस की लर्निंग टेक्निक बताऊंगा और देखना आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे कि क्या होता है। जब हम किसी चीज को याद करते तो वी शुड हैव सर्टेन कोरिलेशंस, है ना। और उस कोरिलेशन से आइडेंटिटी आप रिकॉल कर सकते हैं, कहते हैं ना रिकॉलिंग पावर जिसको कहते हैं। ओके, नाउ सी, चलिए देखिएगा जरा ध्यान से अब इसको, हाउ टू रिकॉल इट। लर्निंग टेक्निक समझिएगा जरा, लर्निंग मेथड भी देख लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने सबसे पहले कोसाइन से स्टार्ट किया था। कोस ए प्लस बी, ध्यान रखना जब भी कोसाइन का फॉर्मूला होता है ना, उसमें पेयरिंग चलती कॉस कॉस की, कॉस कॉस, साइन साइन साइन। ध्यान रखना, आर यू गेटिंग इट प्लीज? अगर ये चीज आपके दिमाग में है ना तो फॉर्मूला आपको याद होगा। यानी कि कॉस की कॉस के साथ। अब एक बात हो, दो को ए और बी एंगल है तो एक को एंगल ए दिया, दूसरे को एंगल बी दिया। इज दैट ओके? याद रहेगा? यहाँ प्लस का, Yes, sir. यहाँ प्लस का मतलब होता माइनस। Yes. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ साइन ए साइन बी। गॉट द आइडेंटिटी? क्लियर है बेटा? Yes, sir. नंबर Yes. नंबर 2, So ए माइनस, यहाँ माइनस का मतलब प्लस होता है और पेयरिंग वही रहनी है। अब मैं देखो रिलेशन बना के दिखाऊंगा सारे। क्या दो फॉर्मूले दिमाग में सेट हो गए आपके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब आइए मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। एक तो यहां बात समझिएगा, प्लस का मतलब प्लस ही होता है और माइनस का माइनस होता है। यहां पेयरिंग होती साइन और कॉस की, साइन कॉस और साइन कॉस। बात समझ में आ रही है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो एक को एंगल ए दिया, एक को एंगल बी दिया, फिर प्लस, फिर इन एंगल्स को सफल कर देना है। ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये ए, ये बी और ये माइनस और ये yes, बी, sir. ये बी एंड ए। आप बताइए, आपको चार फॉर्मूलेस दिमाग में आ गई कि पेयरिंग कैसे करनी है। इज दैट ओके? Yes, sir. चलो हाँ अब जी सर. आपके सामने चार फॉर्मूले आ गए। अब देखिए यही तो चार बेसिक फॉर्मूले जिससे हमने सब कुछ निकाला। अब अगर आप नोटिस करें तो दीज आर द फोर बेसिक फॉर्मूला। अगर याद करिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसी से सीडी फॉर्मूला, cos 2a sin 2a सब कुछ इधर से ही तो वर्कआउट किया है, अगर आप नोटिस करें तो, है ना। सारा वर्कआउट यहीं से Yes. हुआ है। ओके, चलिए अगर ये बात है तो अब एक काम और करते हैं, सीडी फॉर्मुलेज को भी लर्न कराने की टेक्निक बताते हैं। ओके, समझिएगा। cos c प्लस cos d। नंबर 6, cos c माइनस cos d। नंबर 7,
साइन सी प्लस साइन डी, नंबर 8 साइन सी माइनस साइन डी। देखिए एकदम से आपको 8 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तरीका समझिएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप समझ लीजिएगा। ये वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। देखिए यहां प्लस का मतलब है, ध्यान रखिए दोनों टर्म कोसाइन में आएंगी और 2 से स्टार्ट होगा। यहां माइनस का मतलब ये माइनस यहां लगाने के बाद दोनों टर्म साइन में आएंगी, ये याद रखना है। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। याद Yes, कर, sir. क्योंकि Yes, sir. देखिए राइट इन द बिगनिंग हमने पेयरिंग बनाया था कि कोसाइन में कोस कोस की पेयरिंग साइन साइन की, तो यहाँ सीडी में भी पेयरिंग तो वही चल रही है, तो कोस कोस की पेयरिंग है या साइन साइन की। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ एंगल आएगा c प्लस डी बाई टू और दूसरा एंगल आएगा c माइनस डी बाई टू। लर्न हो गया? हाँ जी सर. और ये Yes, बेटा sir. c प्लस डी बाई टू और ये c माइनस डी बाई टू। लर्न हो गया? Yes, sir. अच्छा साइन में क्या पेयरिंग थी? साइन की कॉस के साथ पेयरिंग थी। तो पहले आप लिखोगे, एक बात ध्यान रखना, जो चीज समझने वाली, जो गलती बच्चा करता है वो गलती आपसे नहीं होने देंगे। यहां प्लस है ना, तो प्लस में साइन के साथ आएगा c प्लस डी बाई टू एंगल और कॉस के साथ आएगा c माइनस डी बाई टू एंगल। माइनस में ये एंगल सफल कर जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? c प्लस डी बाई टू Yes, sir. ये चीज हो जाएगा, ध्यान रहेगा। हाँ जी. Yes, sir. अब एक बात बताइए, क्या अब आपको थोड़ा इजी लग रहा है याद करने की टेक्निक? पहले ये बताइए Yes, sir. Yeah. आपको कितने फॉर्मूले एक ट्रिक से याद हो गए, आप खुद बताइए। 8 फॉर्मूलेज। 8 formula. चलो इस 8 को भी थोड़ा और एक्सटेंड कराते हैं, आपको और अच्छे से इसको 10 तक ले आते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ आप इन फॉर्मूलेज का। Taken, sir. ओके समझिएगा। नाउ सी 9, आपने tan a प्लस बी भी पढ़ा था अभी अभी, और tan a माइनस बी भी पढ़ा ना। Yes, sir. Yes, sir. कैसे याद करोगे? प्लस का मतलब ऊपर न्यूमरेटर में प्लस, tan a प्लस tan b, ऊपर प्लस है तो फिर नीचे माइनस आएगा। आर यू गेटिंग इट? माइनस में Yes, क्या sir. क्या होगा? माइनस वाला ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा और प्लस वाला नीचे आ जाएगा। याद रहेगा? हाँ जी सर. तो आपको ये फॉर्मूले याद हो गए? Yes, sir. कितने फॉर्मूले याद हो गए? 10. हो गए ना Yes. 10। चलो अच्छी बात है। अच्छा अब एक काम करो, अगर ये 10 फॉर्मूले याद हो गए तो मेरे साथ आप इस बात को रिकॉल करिएगा। चलो साथ साथ इसको रिवाइज करते हैं और फिर आप दिमाग लगाइएगा प्लीज, क्योंकि ना दिमाग से ही काम चलेगा, जज्बात से काम नहीं चलेगा, समझिएगा। नंबर 1, व्हाट वाज द आइडेंटिटी ऑफ cos a प्लस b? cos a cos b Cos B और plus sin A sin B. Minus sin A sin नहीं B. बेटा, नहीं. प्लस मींस माइनस, cos a cos b Minus. माइनस sin a sin b। इज दैट? Minus sin A sin B. अच्छा cos a माइनस b का मतलब क्या था? cos a। Cos A cos Cos B A cos sin B sin. plus sin A sin B. अब अपने मन में इन दोनों फॉर्मूलोज को ऐड करो प्लीज, मुझे ऐड करके बताओ। व्हाट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b? प्लीज टेल मी। 2 cos A cos B. Cos A cos B. 11th फॉर्मूला आपको याद हो गया, समझ में आ गई बात? आपने क्या किया? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, आपको फॉर्मूला याद है, ये दोनों फॉर्मूले याद भी है और आपने माइंड में क्या किया? इसको ऐड किया, तो क्या बना? इज दैट ओके? अब एक काम करिए, Cos A cos B. अब cos a, Yes, sir. अब इनका डिफरेंस निकालिए अपने मन में ही। cos a प्लस b का डिफरेंस, cos a प्लस b और cos a माइनस b का क्या डिफरेंस आएगा? Minus 2 sin A sin B. श्योर?
हो गया? Yes, sir. कितने फॉर्मूले आ गए? 12। हम्म, क्लियर है यहाँ तक? बताइए जरा। अब एक काम करिए, Yes. अपने माइंड में रिकॉल करिए फॉर्मूला 12 साइन ए प्लस बी। क्या था फॉर्मूला साइन ए प्लस बी? प्लीज। पेयरिंग क्या थी साइन की कोस के साथ? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। याद आया? वहां यहाँ प्लस का मतलब cos प्लस ही है, और साइन ए माइनस बी का मतलब क्या है? sin B. Yes. तो अगर आप यहां इस बात को रिकॉल करें बेटा, अगर इनको ऐड करें तो क्या आता है? आप ही बताइए। 2 साइन ए कोस बी। क्लियर है? Yes, sir. और इसका डिफरेंस ले तो Cos B. 2 cos a sin b। अब सवाल उठता, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो द एप्लीकेशन ऑफ दीज फॉर्मूलेस। Cos A. आपको टोटल कितने फॉर्मूले याद हो गए? आप बताइए जरा। 14 फॉर्मूले याद हो गए? Yes, sir. अब मेरा दूसरा टेक्निक काम करेगा। यार फॉर्मूले तो याद हो गए, लेकिन जो आपको टूल्स दिए उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको अप्लाई करोगे Yes, तो sir. उसके बाद आपको याद और अच्छे से होंगे। तो पहले आज इन 4 फॉर्मूलेस की एप्लीकेशन कराता हूं, और इस पे बड़े ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और ये मोस्टली जो है पूछे जाते हैं। तो इससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ सर, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं और हम इसको, इस टेक्निक को अप्लाई नहीं कर पाए। अब आपको इसको सोचने का नजरिया आपका मैं बदलता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। एक तो बात ध्यान रखना, व्हाट दिस फॉर्मूलेस, वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूलेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कहां से कहां लगाएंगे? राइट टू लेफ्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये क्या करता है? दो कोसाइन के प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट करता है? दो कोसाइन के सम में। इज दैट ओके? ये क्या करता है? दो साइन के प्रोडक्ट को कोसाइन के डिफरेंस में लेके आता है। ध्यान रखना, जब भी हम इसको राइट से लेफ्ट में लगाएंगे, ऑलवेज चूज एंगल ए is greater than or equal to b. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. देखो जरा, मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन करा रहा हूँ, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कहता है प्रूव दैट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री, इट्स वैल्यू इज 1/16। आपने देखा होगा ये क्वेश्चन ऐसा बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इनमें से किसकी वैल्यू जानते हो आप? मुझे बताओ, आउट ऑफ दिस 4 एंगल किसका वैल्यू जानते हो? Cos 60. So cos 60 की तो 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू डाल दो। LHS हाँ डाल दो उसकी वैल्यू। कितना आ गया? 1/2 cos 20 cos 40। cos 20 cos 40 cos 80. अच्छा, अब हमें जो ये फॉर्मूले लगाने हैं राइट टू लेफ्ट, हमें कितने की पेयरिंग करनी है? आप ही बताओ। ओके, So नाउ सी, कोई भी अब पेयरिंग बना लीजिए, आपकी मर्जी है। यू कैन मेक योर ओन पेयरिंग। कोई भी दो की पेयरिंग कर लो। सपोज मैंने पेयरिंग कर ली cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब yes, sir. इस फॉर्मूले पे फिर फोकस करिए। ये चाह रहा 2 टाइम्स ऑफ cos ए cos बी। अब 2 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। प्लीज टेल मी, कैन वी डू इट लाइक दिस? Yes, sir. मैं आपसे पूछ के बढ़ूंगा आगे। मुझे Yes, sir. अब मैंने क्या बताया था, एंगल ए और बी कैसे चूज करेंगे? बड़े वाला एंगल। तो ए एंगल क्या आएगा? 40, 40 degree. और ये B। 40 अब आप यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए। 2 cos ए cos बी क्या था बेटा? ये cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। एग्री? Yes, sir. yes, sir. तो yes, sir. what I will obtain? Please tell me. Cos 60 degree
plus cos 20 degree. Is that okay? Please tell me. Cos 20. Yes, sir. Now you know the value of cos 60 degree. What is the value of cos 60 degree? 1/2. Let us take the LCM. अगर मैं LCM लूंगा तो यहाँ 1/8 भी आ जाएगा और I will be having 1 plus 2 cos 20 degree. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Now एक काम करिए, बाहर बैठा cos 80 इंतजार कर रहा है कि भाई मेरा भी कुछ करो, ठीक है। तो cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री, ये तो पेयरिंग बनी गई। तो बड़े वाला एंगल कौन सा है? 80। ये A, 80. ये B, फिर लग जाएगा 2 cos A cos B। प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes. नाउ कैन वी यूज द आइडेंटिटी अगेन, जो आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रही हो, ये देखिए। कैन वी यूज दिस आइडेंटिटी? Yes, sir. सो व्हाट इट विल बी? cos 100 डिग्री plus cos 60 degree. Is that okay? Yes, sir. Now see, can I write cos 100 degree as cos 180 minus 80 degree? Please tell me. Yes, sir. What it will be? Minus cos 80 degree, second quadrant. Got it? याद है फॉर्मूला या नहीं? हमने ट्रांसफॉर्मेशन Yes. cos 180 minus theta is minus cos theta. So this will get cancelled. Minus cos theta. So what I obtain? 1/8, and what is the value of cos 60 degree? 1/2. 1/16, which is your RHS. समझ में आया? Yes, sir. अब आपने देखा फॉर्मूले की एप्लीकेशन। हाँ जी सर। ये एक तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को? नो सर। No, sir. इससे आगे भी देखिएगा। पता नहीं लोग मानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल, लेकिन मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि मुश्किल क्यों है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप ट्राई करेंगे तो। बिगर एफर्ट्स के तो हर चीज मुश्किल लगेगी आपको। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, जिसमें सारी आइडेंटिटी यूज हो जाएंगी। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, इट्स वैल्यू इज अगेन 1/16। ये प्रूव करना है। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ दिस किसका वैल्यू जानते हैं आप? प्लीज टेल मी। Sin 30. कितना होता है? 1/2। तो उसको लिख लो 1/2। अब मैंने क्या कहा था, पेयरिंग अपने हिसाब से कोई भी बना लो। इज दैट ओके? यस सर। याद करिए फॉर्मूला। -2 साइन ए साइन बी किसके बराबर था? बताओ जरा। Cos A plus B हाँ हाँ, minus cos A minus B. अगर इस माइनस को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो अब 2 sin A sin B ये cos A minus B और माइनस cos A plus B हो जाएगा। minus। इज दैट ओके? यस सर। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी इज 10 डिग्री। अप्लाइड क्या बनेगा? यस सर। दोनों का डिफरेंस cos 40 डिग्री। ओके, एंड व्हाट इज द सम? cos 60 डिग्री cos 60 into sin 70. Just tell me what is the value of cos 60 now? 1/2. 1/2। एलसीएम ले ले बेटा। 1/8 2 cos 40 डिग्री cos 40 minus 1। इज दैट ओके? यस सर। ये 1/8 अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर। 2 cos
30 degree into sin 70 degree minus sin 70 degree. Minus sin 70 degree. Now just tell me, this angle is bigger one A and this angle is smaller one. तो आइडेंटिटी कौन सी लगनी चाहिए? 2 sin A cos B ना, and that was sin A plus B Sin A plus B plus sin A minus B. plus sin A minus B. This is equal to 1 by 8. दोनों का सम कितना आएगा? sin 110 डिग्री. दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? sin 30 डिग्री. 30 degree. Again, sin 110 degree is same as sin 180 minus 70. सेकेंड क्वाड्रेंट है तो sin 70 ही आएगा. So this will get cancelled with it. Is that okay? Yes, sir. तो sin 30 is 1 by 2. It is 1 by 16 RHS. अब आपको इसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई फॉर्मूलेज की? Yes, sir. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. अभी मेरी बेटा 2-3 क्लास में आपकी ऐसे ही लूंगा कि आपको उसमें हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, तो सो दैट आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आएंगे. समझ में आ रही बात? यस सर. हाँ जी सर. तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो बेटा. डन? Yes, sir. यस सर. इससे आगे का भी ले लीजिए, ये वाला भी. डन? यस सर. So 1 second. ओके बेटा. So done. तो आज यहाँ तक रखिएगा. आई विल शेयर दिस वीडियो ऑल्सो. और ये जो लर्निंग टेक्निक आपको बताई है, इससे एक तो पहले कोशिश करिएगा ये सारे फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे हो, क्योंकि अगर आपके फॉर्मूले ये सारे फिंगर टिप्स पे हैं तो ये मान के चलिए बेटा कि फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बच्चा फॉर्मूला याद नहीं करता. समझ में आ रही बात? हाँ जी. यस सर. ठीक है ना. तो यही मैं चाह रहा हूँ कि आप एक तो याद करें इसको, और कोशिश करें कि अगर आप लिख लिख के याद